अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप एवरीवन's doing well. Welcome back to my another YouTube video. So it's been a couple of days that I did not make any video. Today I was thinking YouTube channel के लिए कोई video बनाते हैं, but actually I have been very busy and it's been crazy busy और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं YouTube के लिए कुछ करूँ. And all the time I was very tired. I don't know why I feel like I'm always tired. हालांकि I think that I have a very good diet. मुझे लगता है कि मैं अपना ख्याल रखती हूँ and I have a very good diet and I'm healthy, but I don't know why I'm always tired. I don't know if it's a busy routine. इसकी वजह से मैं tired हूँ या पता नहीं क्या. Anyways, आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकालते हैं YouTube के लिए. And then I was about to take the camera and start the vlog. फिर मैंने सोचा कि कुछ इतना happening तो हो नहीं रहा. And then I was like, you know what? There's a topic that I wanted to make a video on for a very long time और मैंने सोचा कि today I should do that. So today's video is gonna be about the cultural shock that you experience when you first come to Dublin. I can't believe that it's almost been a year for me that I'm here. I came here like during this time of the winter during Christmas last year and it's been a year. Honestly, it feels like it's yesterday and I just can't live here anymore. No, I'm just kidding. I love being here in Ireland. There are pros and cons to everything, but I think this place will always have a special place in my heart. Like it's very weird कि almost 1 year हो गया है और मुझे ऐसा लगता है जैसे it's literally yesterday that I came to Dublin और सब कुछ नया नया था और अभी भी नया है. You know it still takes time. Like 1 year is nothing when you move to a new place. So I'll talk about the cultural shock that you experience once you come from Pakistan to Ireland. अच्छा, जो सबसे पहला कल्चरल शॉक है ना, जिसके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी जिस चीज़ के लिए, वो ये कि there's clean water, clean tap water all the time and you can drink water from the tap right away. So जब मैं पहली बार यहाँ आई ना तो मुझे I wasn't expecting कि ऐसा होगा. And when I first saw कि आप पानी जो है कभी भी tap water से पी सकते हैं and tap water is clean. So I felt so weird because Pakistan में you cannot even think of drinking tap water because everyone knows कि tap water जो है वो साफ़ नहीं होता. So although मुझे पता था कि यूरोप में ऐसे होता है कि आप tap water पी सकते हैं, but seriously when you actually move somewhere and you end up doing those things, it's completely different. क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं और जब आप एक्चुअली कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस होता है. एंड आई रिमेंबर कि मुझे शुरू में ना बहुत अजीब लगता था एंड अ पार्ट ऑफ मी डिड नॉट बिलीव दैट इट्स क्लीन. एक्चुअली अभी भी मुझे कई जगह जो है ना शक पड़ता है कि यार कहीं पे पानी साफ़ होगा कहीं नहीं होगा. सो अभी भी मैं जब कभी टैप वाटर पीने लगती हूँ तो मुझे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है बिकॉज मुझे लगता है कि ये टैप वाटर शायद साफ़ ना हो. लेकिन अपने घर में तो मैं टैप वाटर पी लेती हूँ, लेकिन कहीं अगर मैं जाऊँ और कहीं मैं टैप वाटर पीऊँ तो मुझे बार बार ख्याल आता है कि पता नहीं ये साफ़ होगा या नहीं होगा. ऑल्दो आई एम वेरी इजी गोइंग, मुझे आई डोंट बॉदर मच, बट फिर भी अ पार्ट ऑफ मी व्हेन यू आर देसी एंड यू कम फ्रॉम पाकिस्तान और फिर जब आप यहाँ आते हैं और फिर आप पानी पीते हैं तो अ पार्ट ऑफ यू जस्ट बिलीव्स कि नहीं ये साफ़ नहीं है. इसके अलावा जो एक मेजर कल्चरल शॉक था जब मैं यहाँ पे मूव हुई वो ये था कि जब आप बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो समटाइम्स यू हैव टू स्कैन योर आइटम्स बाय योरसेल्फ. अब ये बात लाइक लिटरली आई रिमेंबर व्हेन आई केम हियर और मैं जब देखती थी कि खुद स्कैन करते हैं आइटम्स, it was so weird. मतलब मैं थोड़ी सी confused भी होती थी. And when you come at first, because back home you never do this on your own. आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके वो आइटम्स भी स्कैन करते हैं और स्कैन करके फिर ट्रॉली तक वो आपका सामान भी रख के जाते हैं, तो you cannot imagine like doing it yourself. और जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अजीब लगा because there were these scanning machines and everyone was scanning their own items खुद ही से, और दैट वॉज अ वेरी वियर्ड फीलिंग आई रिमेंबर. और आई यूज़ टू गेट वेरी कन्फ्यूज्ड जब मैं शुरू में जब लोगों को देखती थी. एंड आई स्टिल गेट वेरी कन्फ्यूज व्हेन आई ट्राई टू स्कैन माई आइटम्स एट सम प्लेसेस एंड आई ऑलवेज एंड अप आस्किंग समवन कि ये कैसे करते हैं, मैं सही करी हूँ या नहीं करी. और कई बार ऐसा हुआ है कि वो जो
you have to remove that thing from the clothes. वो मैंने अक्सर जो है मैंने रिमूव ही नहीं किया, मैं वैसे ही ले आई हूँ कपड़े, तो ये चीज़ होती है. But anyways, that was a major cultural shock जब मैं यहाँ आई थी कि you actually have to scan your items by yourself, क्योंकि back home you don't have anything of this sort that you have to do it on your own. बट एनीवेज यहाँ पे अब जो सेल्फ स्कैनिंग है वो कई जगह पे आ गई है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है. व्हेन यू गो ऑन डील्स यू हैव टू स्कैन द आइटम्स, व्हेन यू गो ऑन टेस्को यू हैव टू स्कैन योर आइटम्स ऑन योर ओन, और Bershka and so many other places जहाँ पे it's quite normal, Zara, so every other place has this. Or it still makes me a bit uncomfortable, but I'm not saying that uncomfortable, but हाँ थोड़ा सा it makes me uncomfortable. So I'm still new because obviously it's just been a year, but I'm still learning. But yeah, that was a major cultural shock जब मैं यहाँ आई थी और मुझे लग रहा था यार मैं कहाँ आ गई हूँ, like why do people scan their things on their own. मतलब क्योंकि जब आपने शुरू से देखा हो ना कि आप शॉप में जा रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं और उसके बाद आपके लिए कोई स्कैन करेगा और उसके बाद आपके ट्रॉली तक गाड़ी में ला के रखेगा सामान, तो वो भी बहुत awkward लगता है. But yeah, that was a major cultural shock. Okay, so another cultural shock was जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं and you eat your food, and when you ask them that you want to take the leftovers to your home, they give you the box so that you can pack. तो I remember जब मैं पहली बार अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट गई यहाँ पे, पहली बार के दूसरी बार या पहली बार जब मैं अपने लेफ्टओवर्स पैक करवा रही थी, आई वॉज विद अ फ्रेंड, और मैंने कहा चलो लेफ्टओवर्स पैक करवा लेते हैं. जब हम लेफ्टओवर्स पैक करवाने लगे तो there was a guy came in and he said that I said we want leftovers, so he said okay, and then he went away. और उसके बाद वो जो है ना वो लेके आया, एक बॉक्स लेके आया, वो जो पेपर बॉक्सेस होते हैं to pack your leftovers. And literally I remember when he gave this to us, I was like literally looking at his face and I felt really awkward क्योंकि वो एक बहुत नई चीज़ थी कि तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि ये हमने खुद पैक करना है. एंड शी वाज लाइक हाँ यहाँ पे ऐसे ही होता है, यहाँ पे खुद पैक करते हैं. एंड आई वाज लाइक व्हाट, क्योंकि ये भी एक बिल्कुल नई चीज़ होती है जब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल आदत नहीं होती कि यू गोना पैक योर लेफ्टओवर्स खुद ही से. बैक होम आपको आदत होती है कि आप कहेंगे कि लेफ्टओवर्स पैक करने हैं तो वो आपके लिए कर देंगे, करके आपको दे देंगे. तो वो एक बिल्कुल नई चीज़ थी और नया एक्सपीरियंस था. सो आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने हमें पेपर में, और अभी भी ऐसे ही होता है. सो एंड द थिंग इज़ कि जब इवन आप पुराने भी हो जाते हैं, it takes time for you to unlearn things because you have learned few things, and also when you have to pick up your own trays है और जाके आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है आपने जो कुछ भी खाया है वो, बिकॉज बैक होम जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें यू नेवर डू दैट, यू जस्ट ईट एंड यू जस्ट leave it over there and then they deal with it. But यहाँ पे इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है, and then you have to pick everything up and then you have to throw it in the garbage, और फिर आप जाते हैं if you are in a restaurant or something, mostly यहाँ पे ऐसे होता है. और या द सेकेंड थिंग जो आपको लेफ्टओवर्स खुद पैक करने पड़ते हैं, ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी. तो दैट वाज अ मेजर कल्चरल शॉक जो यहाँ आके लगा था मुझे. अनदर कल्चरल शॉक वाज कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं और दे आस्क यू दैट you want to buy a bag or not. So initially I used to be very confused कि why do they ask us that you need a bag? Everyone needs a bag after they shop. So because I didn't realize that you have to pay for the bags. तो मैं बहुत हो जाती थी कि why do they, like it was very annoying for me कि why do they keep asking that you need a bag. Then I realized कि पाकिस्तान में होता है कि if you go somewhere you get the bag. So अब I think it has been started changing. अब जो है ना थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि वो आपको बैग्स के लिए कहीं जगह पे पूछ रहे हैं कि you need a bag and you have to pay for it. Otherwise पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता था and they just used to give the bag. So mostly जगह पे ऐसे नहीं होता अभी भी. अगर आप शॉपिंग करते हैं they'll just give you the bag. They'll put the stuff in your bag and they'll give it to you. यहाँ पे they will ask you कि do you need a bag? And you look at them, their face, and
you say. But now शुरू में I didn't realize that you have to pay for it, और मैं कहती थी हाँ I need a bag, and then they tell you that it's this much euros. But now like I realize that, तो I always used to get the bag शुरू में, but अब मुझे ये होता है कि if I don't need it, so I tell them no if I already have a bag. Also यहाँ पे इतना ज़्यादा bags और bags इतने ज़्यादा हो जाते हैं, you end up having a lot of bags. तो इसलिए यहाँ पे लोग भी prefer करते हैं कि वो ज़्यादा bags ना ही लें. That's why people ask them that do you need it, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली दे आस्क फॉर पेपर बैग्स बिकॉज वो प्लास्टिक वगैरह ये चीज़ें वो अवॉइड करते हैं यूज़ करने से, और अगर वो लेते हैं तो वो ज़रूरत की वजह से लेते हैं. तो हमारे ये था कि we didn't bother, like we always used to have bags. So culture shock when they ask you that you need a bag and you have to pay for it. Like back home you don't pay for your bags, you just get a bag free if you do the shopping. So yeah, that was another culture shock. इसके अलावा जो एक और कल्चरल शॉक जो जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा वो ये कि यहाँ पे जो डस्टबिन हैं वो डिफरेंट होते हैं. मतलब अगर आप बिन जो हैं वो 3 किस्म के बिन हैं यहाँ पे प्लास्टिक के लिए अलग बिन है, ग्लास कंटेनर्स वगैरह के लिए, टिन के लिए अलग बिन है, और जो नॉर्मल आपका वेस्ट मटेरियल होता है जैसे फ्रूट्स और फूड और ये सारी चीज़ों की उसके लिए अलग बिन है. सो दैट वाज रियली वियर्ड. जब मतलब that's a bit weird जब आप यहाँ आते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग हर चीज़ को अलग अलग बिन करते हैं. जैसे प्लास्टिक की चीज़ों के लिए एक बिन है, उसके अलावा टिन्स के लिए एक बिन है, टिन्स और ग्लास के लिए, और उसके अलावा जो है जो फूड वेस्ट है उसके लिए अलग बिन है. तो I'll be honest, I don't usually like bin everything separate. I do it together, which is not a good thing to do, but yeah. बट यहाँ पे मोस्टली हर जगह यही है कि यू हैव टू पिन एवरीथिंग सेपरेटली, एंड दैट्स द लॉ, एंड यू हैव टू फॉलो द लॉ दैट के सारों ने जो है ना घरों में भी रखे हुए हैं. मोस्टली घरों में भी ऐसे ही है कि प्लास्टिक कंटेनर्स के लिए अलग है, ग्लास के लिए अलग है, और इसके अलावा जो फूड वेस्ट है उसके लिए अलग है. सो यू बेसिकली एंड अप हैविंग 3 बिन्स. सो यहाँ पे इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. बट जब आप नए आते हैं तो आपको एक कल्चरल शॉक लगता है, बिकॉज पाकिस्तान में इट्स जस्ट 1 बिन. अगर उसमें भी फेंक दें तो बड़ी बात है, बट पाकिस्तान में इट्स जस्ट 1 बिन, और वहीं पे आप 1 बिन और उसी में आप फेंकते हैं. और वहाँ पे यही कहते हैं कि हर चीज़ को बिन में फेंके. वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यू नीड टू हैव प्लास्टिक के लिए अलग और हर चीज़ के लिए अलग. तो या दैट वाज समथिंग वेरी न्यू जब मैं यहाँ आई थी. और दैट्स समथिंग जो आपको फील होता है जब आप वहाँ से आते हैं ना, कि यहाँ पे डिफरेंट है कल्चर, और ये चीज़ आपको बड़ी वियर्ड लगती है. बट देन अगेन यू गेट यूज्ड टू इट विद टाइम. एक जो सबसे मेजर कल्चरल शॉक है वो तो मैं बताना ही भूल गई, जो हर बंदा फील करता है जब वो पाकिस्तान से आता है यहाँ. और वो इट्स समथिंग वेरी बेसिक. और बाय द वे ये पहली चीज़ है जो मैं जब यहाँ पे लैंड हुई थी, तो अभी एयरपोर्ट में थी, तो मुझे इट केम एज अ शॉक टू मी कि माई लाइफ हैज़ चेंज फॉर एवर. और वो इट केम एज अ शॉक फॉर मी. और वो मेन चीज़ ये थी कि व्हेन आई लैंडेड हियर, तो मैं गई एयरपोर्ट में टॉयलेट यूज़ करने, एज वी ऑल डू. जैसे ही आप कहीं लैंड करते हैं तो फर्स्ट थिंग यू गो टू द टॉयलेट और वॉशरूम. So I went there back. You realize I realized that there's no shower. There's no Muslim shower. Although again I knew everything. I knew that there are no Muslim showers in Europe, or you don't get Muslim showers, and it's a huge blessing if you have Muslim showers somewhere. But still, I still remember जब पहली बार I realized कि what, there is no Muslim shower in this toilet. And you're just there. You just did your thing, or there's no Muslim shower. That came as a shock to me. And that was, by the way, the major shock. And I think ये shock जो है ये सबको ही लगता है जब वो यहाँ आते हैं. Although हम लोग शुरू से हमें पता होता है कि यूरोप में कोई showers नहीं है ये वो, but that very moment when I was in airport and I used the toilet and then I realized that oh my god, there's no Muslim shower here, वो जो है ना वो मुझे कभी नहीं भूलता. Because it was kind of funny as well, because I knew, but still it came as a shock to me कि oh okay, so ऐसा नहीं होता यहाँ पे, है ही
है ही नहीं कोई Muslim shopper. So that came as a shock for me. So yeah, that was a major cultural shock जो मुझे लगा था जब मैं यहाँ आई थी. I don't know how long this video will be, but yeah, अभी जो है मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी. Hopefully you like this video. I don't think so that it will be that long, but I hope you guys enjoyed, and if you did, please subscribe to my channel. So yeah, these are all the cultural shocks that I experienced when I came first here in Ireland. Anyways, I hope you guys enjoyed the video. I'll see you in the next video. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.